Good afternoon. Welcome to EduSet Network. Friend, as you know, we are discussing content analysis. In the last lecture, we discussed basics of news and the various dimensions of news writing. And for discussion on this very topic, we have in the studio the same resource person, Professor Subhash Dhulia. He is presently director of a School of Journalism and New Media Studies at IGNOU, Indira Gandhi National Open University. And he has long experience of all the world academics as well as journalism. And presently, he is also looking after how can the media studies be developed in the country. So, as you know, that the present genre of journalist has sometimes one way or the other way been influenced or shaped by his writings and teachings. So, I hope his knowledge and experience will help us to understand this topic in a new perspective. So, on your behalf, I welcome Professor Subhash Dhulia for EduSet lecture on this topic. Welcome. Thank you. Thank you. So, first I would like to know, because the last lecture we discussed about the various dimensions of the news writing. So first we would like to know how the content analysis and when we adopt this as a tool for a study of the news reportings, or we can say that any topics when we want to take for the PhD or for other purposes. To analyze the content, first of all, we must understand the nature of news operations. We must understand the dynamics of the media coverage of different issues. For example, there is a small word that is within the domain of our direct experience. मतलब एक छोटी सी दुनिया है जो हमारे सीधे अनुभव के दायरे में होती है. And rest of the world is the world of images. On different varieties of the subjects, the thousands of events that occur in the country and across the globe, we get information about these events through some channel of information. Now in media, what we call the gatekeeping operations. Gatekeeping operations mean there is selectivity of the media. Now first issue is, media will perceive only few events as newsworthy. Thousands of events occur, but only some of the events are the newsworthy. Now to analyze any media coverage, the first step is to understand that what are the factors that a news organization take into consideration while evaluating newsworthiness of an event. Now to understand that dynamics is extremely important. And second is, which dimensions of that events are being highlighted and which are being ignored. Now this we have to understand, that what is being selected and what is being rejected. And what is being selected, what are the dimensions that are being highlighted and what are the dimensions that are being ignored. Now this we have to understand, because as I said that we live in a world of images. About any event or any subject, whatever we know is through the informations. If I say Nagaland, the image will flash in your mind. Immediately Nagaland, it may be, immediate image may be violence and insurgency, immediate image may be travel culture. So many images will occur. If it's Africa or United States or Europe or Germany, there is some image. Now that image is formed on the basis of the information that we are exposed about that subject. Now to explain this concept, the very simple example is ये एक जो लोक कथा है, 6 अंधे और एक हाथी की जो कथा है, आप सब लोगों ने सुनी होगी, लेकिन उसको एक बार मैं संक्षेप में आपको फिर बता देता हूँ कि एक बार 6 अंधों के बीच में इस बात पे विवाद हो गया कि हाथी किस तरह का होता है. तो 6 के 6 अंधों ने कहा कि चल के हाथी को देखते हैं. अंधे का देखने का मतलब होता है कि उनका जो इन्फॉर्मेशन वो इकट्ठी करते हैं वो छू करके करते हैं. उन्होंने कहा चलिए हम हाथी को खुद ही
छू के देखते हैं कि हाथी कैसे होता है। तो 6 अंधों ने हाथी के 6 शरीर के 6 अंगों को छुआ। एक ने उसका पैर छुआ, उसने कहा हाथी खंबे जैसा होता है। एक ने उसकी पूंछ छुई, उसने कहा हाथी सांप जैसा होता है। एक ने उसके कान छुए, उसने कहा कि हाथी पंखे जैसा होता है। बस 6 अंधों ने हाथी के 6 हिस्सों को जो है वो छुआ और उन्होंने 6 तरह की इमेजेस क्रिएट की। तो आशय ये कि बिकॉज they were exposed to information of only one part of that subject, which is elephant as a whole, and they formed an image on the basis of the information that they could gather. Now this is this simple story, it tells a lot कि हमको पूरी दुनिया के बारे में जो भी मिलता है it is based on the information that we are exposed to. तो इस चीज़ को समझना चाहिए, क्योंकि मीडिया के किसी भी कवरेज को एनालाइज करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि what is being selected, on what basis, what is being rejected, and which dimensions of that what is being selected is being highlighted, how the entire issue is being framed. मतलब गेट कीपिंग एक्सरसाइज जो आपने बताया उसका मेन मकसद होना चाहिए कि जो न्यूज़ हम दिखाएं सामाजिक सरोकार और राष्ट्रीय जो हित है उसके अनुरूप हो, उससे बाहर नहीं जाओ। लेकिन आजकल जो सिलेक्टिवनेस गेट कीपिंग में जो आ गया, सिलेक्ट करने का या निर्णय लेने की क्षमता, वो वॉइस ज़्यादा शो करता है, जैसा कि लोग क्लेम कर रहे हैं कि ये बाइस्ड है या किसी एक मत से पक्ष रखते हैं और दूसरे मत को इग्नोर करते हैं। तो यह किस हद तक उचित है और इससे किस तरह से एनालाइज किया जाए? एक्चुअली यही पॉइंट जो मैं मतलब जिस पे जोर दे रहा हूँ कि जो आपने कहा कि ऐसी घटनाओं को समाचार बनना चाहिए जिनका सामाजिक सरोकार हो, क्योंकि जो कन्वेंशनल डेफिनेशन है न्यूज़ की तो यही है कि वो तमाम इवेंट्स इसका संबंध हो की ज़िंदगी से। हम उन घटनाओं के बारे में जानना चाहते हैं जिनका हमारी ज़िंदगी से कोई संबंध है या जो हमारी ज़रूरत है। नाउ दैट इज़ एन आइडियल सिचुएशन दैट द इवेंट्स दैट कंसर्न अवर लाइफ, दैट कंसर्न अवर इंटरेस्ट और क्यूरियोसिटी, that we want to know about, ideally they should become the news. But what I said is that understand the dynamics. Now this idealism is not being practiced because there are numerous factors which are deciding that what is newsworthy. There is a combination of numerous factors that is having a defining impact on the selection of the news story. Now this is not one thing, this is our own perception. Now for example, there is a perspective of the developing countries, Western perspective. We have a perspective of developing countries. We have Indian perspective. Now we look at a subject from different perspectives. Now for example, one simple example, Iraq. Iraq was when United States, that means the Iraq war, whether you say it Iraq war, whether you say it war in Iraq, whether invasion, occupation, liberation, Operation Freedom, now all these terms were used for American action. I am saying action again. When I am saying action, I am communicating a meaning. If I say American invasion, if I say American aggression, by choosing the term you are communicating a meaning. Now Iraq war is a very neutral term. War on Iraq is likely, that means a war has been launched on Iraq. Operation Liberation is something very, very positive thing, as if American military action is aimed to liberate the Iraqi people from a dictator. Now this is the dynamics that from what perspective we are looking at the subject. What are our predetermined notions? Because our bias is based on the image that we have formed. I said that we live in the world of images. Right. So we have some images. When we say Western countries, we have some images. We look at the Western people from certain perspective because we think they are like this. Now that is the sociology of that we need to understand. That how things are being projected. Now again, Iraq war, when Baghdad was captured by American forces, then if you remember, there was a footage
that people are hammering Saddam Hussein statue, और वो लगातार उसे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, कोई हथौड़े मार रहा है, कोई कुछ कर रहा है. दैट वाज जस्ट आफ्टर द फॉल ऑफ इराक टू अमेरिकन फोर्सेस. अब उसकी इमेज देखिए कि अगर आप याद करें तो इस एक्शन में मुश्किल से 100 लोग शामिल थे, और बगदाद की पॉपुलेशन 2 करोड़ थी. उस पर ऐसा कवरेज था, आपने ऐसा फुटेज सेलेक्ट किया कि ऐसा लग रहा है कि इराक इज सेलिब्रेटिंग फॉल ऑफ द बगदाद, because the kind of footage that you have chosen, because your predetermined notion is that American action is to liberate Iraqi people from a dictator, and then you are picking up the images or informations that will depict that as if Iraqi people are celebrating, which was not true. In fact, the entire population of Baghdad was shocked, was stunned that how so easily that Baghdad has fallen to American hands, which was not true. Now again, if you take example of after 9/11, after 9/11 one footage was telecast across the globe by all channels. That's a group of Palestinians are celebrating. Now first thing is that the fact is that 9/11 terrorist attacks on America were condemned by the entire world, even by Arab governments. In fact, the bitter critique came from within the United States. Because in the United States, some people said that these attacks may be the outcome of American actions and policies across the globe. This criticism came from America. Even PLO condemned these attacks. Now, you picked up a small group of people to communicate a message as if the entire Islamic world is celebrating. Which was not true. Right. Now this what kind of footage there are a number of studies that in the conflict between Palestinians and the Israelis, there are some studies that indicate that whenever there are Israeli casualties, the footage of the women and children is shown, and dead bodies of women and children are shown, and whenever there are casualties on the side of Palestinians, then some image of the soldiers are shown. Now that means when Israeli actions takes, then innocents are not the victim. That is an indirect message. And when there is a Palestinian attack, then innocent people are the victim. Now that's how you see what kind of images that we create. Again, if you take Afghanistan, Afghanistan is a country which is at war right from 1989. 79. Now 79 till date, how many years? Almost 40, Right. almost 30 years. 30 years. Now this is a country which is at war for last 30 years. That means every Afghan who is of the age of 30 has not seen peace. He has born and lived कि जब तमाम बम विस्फोट हो रहे थे, लोग मर रहे थे, only was the dead bodies. Now you ask yourself, how many news reports or coverage have there been about the suffering of the Afghan people? A country at war for last 30 years. How the common people are suffering, their miseries, their hardships. We hardly get any report about them. Right. Whatever is reported in media is about some violent incidents, some getting killed. अब जैसे कई बार खबरें होती हैं कि अमेरिकी हवाई हमले में 15 आतंकवादी मारे गए. अब हवाई हमला अगर होगा और जो मारे जाएंगे तो आप ये कैसे पता करेंगे 15 आतंकवादी थे? Now what kind of bias this is? Because in a bombardment from the air, you can make it out that all those who were killed were terrorists. But this kind of things are reported because you perceive that American actions are targeted only to eliminate the terrorist. So in every American actions, the people who are being killed are the terrorists. Now these are the images, and we must understand the dynamics of these images. Right. If you take for example Kashmir में 10 लोग अगर रिपब्लिक डे के दिन कहीं पाकिस्तानी झंडा फहरा दें तो खबर बन जाती है. ऐसा लगता है कि सारे कश्मीर में हो रहा है. कश्मीर में पहले, अब तो वहाँ आतंकवाद, लेकिन पहले वहाँ मैच होते थे कई बार. तो मैच में जो है वो 5 लोगों का एक ग्रुप पाकिस्तानी झंडे जो है वो
अब एक स्टेडियम में 1 लाख लोग बैठे हुए हैं, 10 लोगों ने एक एक्शन किया, आपने 1 लाख मतलब 1,99,095 लोगों को तो इग्नोर कर दिया, अब 5 लोग का एक्शन न्यूज़ बन गई। तो ये जो न्यूज़ होती है कि एक नेगेटिव चीज़ खबर बनती है, इससे जो कई बार जो डिस्टॉर्शंस आते हैं, तो इसको समझना ज़रूरी है। अगर आप कोई भी वीडियो एनालिसिस कर रहे हैं, तो अगर आप कंटेंट एनालिसिस कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि व्हाट इज़ बीइंग रिपोर्टेड, व्हाट इज़ बीइंग प्रोजेक्टेड। ना एक है कि पाकिस्तान का झंडा लोगों ने क्या इस अपने आप में सच है, कहने का मतलब ये है कि जो मीडिया क्लास में पढ़ाया जाता है कि व्हेन डॉग्स वाइट मैन दैट इज नॉट न्यूज, मैन वर्ड्स डॉग दैट इज द न्यूज, दैट इज द न्यूज। लेकिन बट दिस वाज द फर्स्ट लेसन, बट द मीडिया पर्सन लर्नड इट द फर्स्ट एंड लास्ट लेसन, दैट्स व्हाई दे आर नॉट। नहीं, लेकिन द पॉइंट इज कि आज मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि मैं एक सेइंग है कि मीडिया में जो दुनिया दिखती है, दुनिया इतनी बुरी नहीं है। अब हम अपने देश का एक अखबार निकालें तो फ्रंट पेज पे उसमें करप्शन, वायलेंस, जातिवाद, सारी खबरें नेगेटिव होती हैं। तो ऐसा लगता है हमारे देश में अच्छा कुछ भी नहीं है ना। उसको समझना ज़रूरी है कि हाउ द मीडिया रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रियलिटी, that must be understood for any kind of analysis of media coverage, for any kind of content analysis. That's very, very crucial and critical that you have to understand this thing. तो एक बात और आपने कही, सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया। तो सोशियोलॉजी ऑफ मीडिया, एक तो इसका क्या मीनिंग है, और क्या एक जैसे एक रिपोर्टर तो गलती किया कि वो एक चीज़ दिखा रहा है, फिर देखा जाता है कि उसी को देखा देखिए सब उसको फॉलो कर रहे हैं, तो ये ऐसी घटना क्यों होती है? ऐसे देखने को क्यों मिलता है? वही बात वहीं आती है कि चीज़ गलती की नहीं है, क्योंकि आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा कि वो कौन से कंसेप्ट्स हैं जो न्यूज़ सिलेक्शन को गवर्न करते हैं। एक जर्नलिस्ट कंडीशनड है कि आपने कहा ना कि व्हेन मैन बाइट्स द डॉग, एक जर्नलिस्ट ये कंडीशनड है कि व्हेन द डॉग मैन विल बाइट द डॉग ओनली देन दिस इज द स्टोरी। तो एक हद तक तो जर्नलिज्म जो है वो इट्स बाउंड टू बी दैट न्यूज़ मीडिया हैव टू बी क्रिटिकल, but what really happens is that this critical role, when it is being practiced for a very long period of time, then it ends up into generating negative images, because then there is nothing positive in the society. So what the issue is that if you say 5 houses burnt is a news, and 1,000 houses built is not a news, so burning will be news. Now these are the governing news concepts. Okay. So we have to, because we are the scholars. So you are suggesting that we need to revisit yeah, the... we are talking about the scholarly research. Okay. So when we do the research, we have to take into consideration that this is the representation of the reality by the media. And sociological factors means how our perceptions are formed, in which social and cultural setting we are living in. Because when we define news, then news acquires different meaning in different political, economic, social and cultural settings. American news concepts are not the same as our news concepts. Some of the news stories which are very, very important for American news media are not equally important for us. Right. Now they will differ because of sociological and cultural factors also. Sociological means what perceptions we form. What is our concept of objectivity? So this is the primary crux, that we have certain predetermined notion, because we have some image of a subject, Right. and we tend to look at that subject according to that image. अगर आपको कहा गया है कि खास कम्युनिटी इस तरह की होती है, तो आप उस कम्युनिटी में वही देखेंगे। तो ये कि जैसे एक एग्जांपल मैं अक्सर देता हूँ कि माना कहीं जो है वो हिंदू मुसलमानों के दंगे हो जाए, 3 रिपोर्टर्स के 3 परसेप्शन हो सकते हैं। एक रिपोर्टर का परसेप्शन ये है कि जो मुस्लिम माइनॉरिटी है फैनेटिक होती है, हर शहर में अपना एक छोटी सी जो है वो बस्ती बना लेती है, एक झुंड में इकट्ठा होकर रहती है, और ये एग्रेसिव होती है, दंगे इसकी वजह से होते हैं। अब एक अगर आपका परसेप्शन ये है, आप अगर उसकी रिपोर्टिंग करने जाएंगे, आप ऐसे फैक्ट्स को ज़्यादा सेलेक्ट करने की टेंडेंसी आप में होगी जो आपके इस परसेप्शन से पुष्टि करते हो। अब यहाँ आप जानबूझ के कोई गलती नहीं कर रहे हैं, आपको लगता है कि ज़्यादा न्यूज़ वर्दी है क्योंकि आपने कम्युनिटी को एक ख़ास तरीके से देख लिया।
दूसरा परसेप्शन ये हो सकता है कि मुस्लिम माइनॉरिटी इज़ ऑप्रेस्ड एंड हिंदू मेजॉरिटी इज़ ऑप्रेसिंग देम। अगर आपका ये परसेप्शन है तो जो सेट ऑफ फैक्ट्स आप इकट्ठा करेंगे वो डिफरेंट होंगे। लेकिन अगर आपका परसेप्शन है कि कम्युनल राइट्स आर इंजीनियर्ड बाय सम वेस्टेड इंटरेस्ट, दे आर इंजीनियर्ड बाय सम इकोनॉमिक इंटरेस्ट और पॉलिटिकल इंटरेस्ट, एंड कॉमन पीपल आर द विक्टिम, दे सफर, then you will tend to highlight the sufferings of the common people irrespective of whether they are Hindus or they are the Muslims. Now one event can be reported in three different perspectives, right, because we have three different perceptions, and all three reports will be factually right. But you are telling a lie, or you are projecting a reality on the basis of the facts. Now in journalism we have to differentiate, because a fact in itself is not truth. जब हम कह रहे हैं कि आप एक छोटी सी चीज़ को पिकअप कर लेते हैं, अपने चीज़ में वो सच है कि 5 लोगों ने गणतंत्र दिवस पे पाकिस्तानी झंडा फहराया, अपने आप में फैक्ट है। लेकिन अगर आप इंटायर कश्मीर से रिलेट करके उसको देखेंगे, आप स्कॉलर हैं तो आप करेंगे, एक तो निष्कर्ष से निकल सकता है कि हाँ कश्मीर में प्रो पाकिस्तान फीलिंग्स हैं, एक निष्कर्ष से निकल सकता है कि ये फीलिंग्स नहीं है। तो आप हाँ मतलब स्कॉलरली रिसर्च यही होती है, आपके हाइपोथेसिस के हिसाब से आप तय करते हैं कि इसकी पुष्टि होती है, झूठ साबित होती है। तो कंटेंट एनालिसिस के लिए इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, मतलब डिसिफरिंग द कंटेक्स्ट। हाँ, मैं किस कंटेक्स्ट में कौन सी चीज़ कही गई है, वही जो गेट कीपिंग है वो प्राइमरी चीज़ है कि हमारा जो परसेप्शन है रियलिटी का वो क्या है। तो इसमें एक क्वेश्चन जो उठकर सामने आता है कि जनरली जैसा कि आपने कहा कि पत्रकार अपने सेट कॉन्सेप्ट के अनुसार किसी घटना को कवर करते हैं या किसी बिंदु पर अपनी राय रखते हैं, तो वो जो सेट कॉन्सेप्ट है उसको कैसे दूर किया जाए या सरोकार के साथ जोड़ा जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ी समस्या है। बात चाहिए कि अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च के साथ साथ वहाँ भी उसमें भी सुधार हो। हाँ मतलब आप चाहिए पे नहीं जाते, आप ये देखते हैं कि कोई चीज़ क्यों हो रही है। कि अब यह है कि सामाजिक सरोकार से कटने का संबंध कई फैक्टर्स से, कि एक आदर्श स्थिति अपनी जगह पे होती है, लेकिन यह है कि कुछ चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रही हैं। तो अगर आप रिसर्च करते हैं तो आप ये जानने की कोशिश करते हैं कि ट्रूथ क्या है, कि एक समाज में वो कौन सी अवधारणाएं हैं जिसके आधार पर समाचारों का चयन होता है। व्हाट आर द गवर्निंग कंसेप्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ विच न्यूज इज सेलेक्टेड, एंड वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट्स। अब वो कंसेप्ट्स जब हम समझेंगे तभी हमें समझ पाएंगे कि क्यों सामाजिक सरोकारों की मतलब उनको क्यों वो नज़रअंदाज हो रहे हैं और क्यों वो चीज़ें समाचार बन रही हैं जो समाचार नहीं बननी चाहिए थी। तो एक स्कॉलर रिसर्च का मीनिंग ये होता है कि हम इनके मीनिंग्स को जो है वो ढूंढें कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। तो रिसर्च कि हम जब बात करते हैं तो चाहिए कि बात अपनी जगह होती है, लेकिन क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसकी पड़ताल करना ज़रूरी है। सीधे तौर पे हम लोग ये कह सकते हैं कि इतने दिनों के अनुभव के आधार पे हम लोग कह सकते हैं कि जो एडिटोरियल डिसीजन मेकिंग का कंसेप्ट है दैट नीड टू बी रिविजिटेड। हाँ, अगर आप रिसर्च करते हैं, जैसे माना कि आपका रिसर्च टॉपिक हो सकता है कि एक टेलीविज़न चैनल में न्यूज़ मेकिंग डिसीजंस कैसे होते हैं, तो अगर आप इसका विश्लेषण करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक रिपोर्टर का माइंडसेट क्या है, वो किस रूप में कंडीशंस है, उसके कंसेप्ट्स क्या हैं जिसके बेसिस पे वो किसी घटना को सोचता है कि इस घटना ये बड़ी खबर है। दूसरा, ये खबर जब न्यूज़ रूम में पहुंचती है तो न्यूज़ रूम के अलग अलग लेवल पे वो क्या चीज़ें फैक्टर्स हैं जो उनके दिमाग में होते हैं कि इसको खबर को बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। अब जैसे आज जो हमारे टेलीविज़न चैनल्स हैं उनके बीच में एक ज़बरदस्त एक होड़ है, मतलब उनके बीच में होड़ है कि जो बाज़ार है, बाज़ार का बड़ा हिस्सा जो है मतलब टीवी देखने वाले के ज़्यादा दर्शक उनके पास हों, क्योंकि उसके आधार पर ही उनको विज्ञापन मिलते हैं। एक तरह का कॉमर्शियल कंपटीशन जो है वो मार्केट में चल रहा है। अब उस कॉमर्शियल कंपटीशन में जो टीआरपी की बार बार बात की जाती है, टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट कि हर हफ्ते जो है वो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट्स आते हैं कि किस चैनल को कितने लोगों ने देखा। अब वो टीआरपी की जो दौड़ है वो वीकली दौड़ है, और उसमें जो है वो एक प्रोग्राम किसी खास दिन कोई खास प्रोग्राम की वजह से, खास स्टोरी की वजह से एक चैनल बाजी मार ले जाता है। और यहाँ पे ये मार्केट कंपटीशन
पूरी डिसीजन मेकिंग को इन्फ्लुएंस करता है। कि ये मुमकिन है कि एक बहुत अच्छी रिपोर्ट जिसमें सामाजिक सरोकार हो, जो इस देश की गरीबी या बेरोजगारी या वास्तविक मुद्दों को उठाती हो, लेकिन एक ऐसी खबर है जो सनसनी पैदा करती हो। तो आज का जो भी एक रुझान बना हुआ है न्यूज़ सिलेक्शन का, तो निश्चित रूप से एक सामाजिक सरोकार वाली जो खबर होगी उसकी उपेक्षा होगी, और जो खबर सनसनी पैदा कर रही है उस खबर का सिलेक्शन होगा। तो ये इसका अध्ययन करना ज़रूरी है कि ये फैक्टर्स क्या है, मतलब जिसमें कॉमर्शियल कंसिडरेशंस भी हो सकते हैं, आपके न्यूज़ कंसेप्ट्स भी हो सकते हैं, आपकी जो कंडीशनिंग है वो भी हो सकती है, आपके माइंडसेट भी हो सकते हैं, आपके ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसीज़ भी हो सकती हैं कि कौन सी चीज़ खबर बनती है, कौन सी चीज़ खबर नहीं बनती है। एक तो ये रिसर्च का बिंदु हुआ गया, एडिटोरियल डिसीजन। दूसरा, रिपोर्टर्स और एडिटर्स के बीच में भी किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट या किस तरह से परसेप्शन पॉइंट है, इस पर भी एक बात कुछ करने की, क्योंकि रिपोर्टर्स जाता है अपने फैक्ट्स लेकर, सारे फैक्ट्स को लेकर, उसके बाद एडिटर्स उसे एंगल देते हैं कि इस एंगल पे करो। तो इसका क्या प्रैक्टिस है? मतलब रिपोर्टर्स जो है वो एक तो कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन रिपोर्टर्स किसी भी मीडिया हाउसेस की जो हाँ मतलब ब्रॉडली जो उसकी जो न्यूज़ वैल्यूज़ हैं उसमें सब कंडीशंस हो जाते हैं, चाहे रिपोर्टर्स लेके एडिटर तक। एडिटर से ओरिजिनेट होते हैं कि क्या चीज़ें हैं जो हमारी खबरों में जिनको प्रमुखता मिलनी चाहिए। जैसे आजकल दो अखबारों के बीच में विज्ञापन का युद्ध चला हुआ है। दो देश के बड़े लीडिंग अखबार हैं। एक अखबार बार बार ये चीज़ दिखा रहा है कि जो दूसरे अखबार को पढ़ते हैं उनको फिल्मी हस्तियों के बारे में तो बहुत कुछ पता है, लेकिन जो असली मुद्दे हैं उनके बारे में उनको नहीं पता। ये विज्ञापन दोनों अखबारों के बीच में चल रहे हैं। और दूसरे अखबार का विज्ञापन ये है कि ये अखबार तो बड़ा डल एंड ड्राइव है, इस पर कोई दिलचस्प खबरें होती ही नहीं। तो एक अखबार वाला कहता है कि हमारे पढ़ने वाले इतने स्मार्ट हैं, दूसरा कहता है कि हमारे पढ़ने वाले इतने जागरूक हैं। तो ये इस तरह की डिबेट है कि ये दो समाचार संगठन हैं जिनकी न्यूज़ वैल्यू डिफर करती हैं। तो एक तो पहला स्टेज है कि एक रिपोर्टर और संपादक के बीच में एक कम्युनिटी ऑफ शेयरिंग है कि उनके न्यूज़ वैल्यूज़ में कम्युनिटी है, और जाहिर है कि एक न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के कुछ डिफाइंड न्यूज़ वैल्यूज़ होती हैं। तो पहला लेवल तो है कि वो चीज़ों को शेयर करते हैं। एक रिपोर्टर भी जानता है कि मेरी अखबार की ज़रूरत क्या है। एक टीवी चैनल का रिपोर्टर भी जानता है कि मेरे चैनल के रिक्वायरमेंट्स क्या है। अगर वो टाइम्स नाउ का रिपोर्टर है तो वो जानता है कि मेरे चैनल को क्या चाहिए। अगर वो किसी दूसरे चैनल का रिपोर्टर है, इंडिया टेलीविज़न का या आज तक का, तो वो जानता है कि मेरे चैनल को किस तरह की खबरें चाहिए। तो एक तो यहीं से पहला प्रभाव उस पर पड़ता है कि उसको मालूम होता है कि क्या क्या चाहिए। लेकिन जब आप एडिटर की बात करते हैं या आप न्यूज़ डेस्क की बात करें, मतलब जो है कि न्यूज़ डेस्क से डिसीजंस क्या होते हैं। अब न्यूज़ डेस्क में है कि न्यूज़ डेस्क में पूरे देश और दुनिया से खबरें आ रही हैं, और जो स्पेस है वो लिमिटेड है। तो कई बार एक खबर एक दिन फ्रंट पेज पे जा सकती है जिस दिन की कोई बड़ी घटना ही नहीं हुई है, लेकिन उस दिन अगर कोई बहुत बड़ी घटना हो जाए तो हो सकता है उस खबर को जगह ही नहीं मिले। तो यह कि डेस्क होती है, डेस्क है जिसको आपने एडिटर कहा, तो डेस्क का अगर हम कहें तो डेस्क ये देखती है कि ओवरऑल न्यूज़ फॉल कितना है और किन खबरों को हम ड्रॉप कर सकते हैं, किन खबरों को हमको कहाँ देना है, किस खबर को किस पन्ने में देना है। तो ये थोड़ा सा रहता है, लेकिन कॉन्फ्लिक्ट एक एज सच उस तरह से नहीं होता है। लेकिन कभी कभी वो सिचुएशंस आती हैं कि एक रिपोर्टर की कोई क्रिटिकल रिपोर्ट है, लेकिन वो न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के ओवरऑल पॉलिसी पैरामीटर्स से मेल नहीं खाती है, तो मुमकिन है कि वो समाचार को किल कर दिया जाए। उसको जर्नलिस्ट की जारगंज पे कहते हैं कि खबरों को किल कर देना। तो कई ऐसी खबरें होती हैं जिनको एडिटर एक ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल अपने पॉलिसीज़ के हिसाब से ये मानता है कि ये हमारे अखबार के पॉलिसी पैरामीटर्स में चीज़ें जो हैं वो उसके अनुकूल नहीं है, तो खबरें रिजेक्ट होती हैं। अब आते हैं इसके जो खबर का जो इम्पैक्ट होता है, तो इम्पैक्ट स्टडी करते समय उसे क्या ध्यान देना चाहिए? इम्पैक्ट स्टडी में यह है कि जैसे कि आपसे बात हो रही थी अभी माओइज्म के कवरेज को लेकर के। अब इम्पैक्ट स्टडी में है कि जैसे आप लोगों ने परसेप्शन फॉर्म किए, तो परसेप्शन फॉर्म कैसे हुए। तो आप जैसे कवरेज को लेकर के लोगों के परसेप्शन देखते हैं कि क्या परसेप्शन है उनके। आप भी देखते हैं कि डिफरेंट सोशल सेगमेंट्स में क्या परसेप्शन है। मतलब मुमकिन है कि जो मेट्रो की मिडिल क्लास है उसके परसेप्शन डिफरेंट हो, एक स्मॉल टाउन के मिडिल क्लास के परसेप्शन डिफरेंट हो, या एक गांव के किसान के परसेप्शन डिफरेंट हो। तो आप भी देखते हैं कि परसेप्शंस क्या, मतलब मीडिया ने कितना इम्पैक्ट पैदा किया। आप लोगों से बातचीत करते हैं कि अगर उनकी ओपिनियन बनी, उनका परसेप्शन बना अगर माओइज्म को लेकर के, तो उसका आधार क्या है।
तो ये कि इम्पैक्ट स्टडी का मतलब कि मीडिया का इम्पैक्ट कितना हुआ है। तो इम्पैक्ट स्टडी में आप इस तरह के सर्वे मेथड्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होते हैं कि लोगों का परसेप्शन कैसे हम लोग इवेलुएट करते हैं। तो एक जैसे जो परसेप्शंस है मीडिया पर्सन्स का उसका और लोगों का परसेप्शन जो उसकी रिपोर्ट पढ़ के बना, ये तो दोनों को भी हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि जो देना चाहते थे सो गया है, या जो जिस प्रकार के लोग न्यूज चाहिए वो नहीं था, इस तरह से इस पे भी स्टडी की संभावना है। हाँ, स्टडी की संभावना ये है कि आमतौर पे जैसे अगर आप न्यूज ऑर्गेनाइजेशंस के जो भी मैनेजर्स हैं उनसे बात करें तो उनका कहना ये होता है कि लोग यही चाहते हैं जो न्यूज़ हम उनको देते हैं। तो एक तो अंतर ये करना पड़ेगा कि कुछ खबरें ऐसी होती हैं जिनको देखने में हमको मज़ा आता है। तो एक तो हमारी कुछ है कि व्हाट वी वांट एंड व्हाट वी नीड। मतलब एक बार मैंने एक आर्टिकल लिखा था तो मैंने ये कहा था कि अन्न और अचार की मैंने कंपैरिजन की थी। मैंने उसमें लिखा था कि टीवी चैनल्स जो है लोगों को अचार खिला रहे हैं अन्न की जगह। तो ठीक है, अचार खाने में हमको बहुत मज़ा आता है, चटपटा होता है। एक अन्न अगर उसमें कुछ मसाले ना हो तो मतलब उसमें कुछ स्वाद नहीं होता है। तो यही चीज़ें कह सकते हैं कि एक तो वांट होता है कि चीज़ बड़ी 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 टेस्टी है, और एक होता है कि जो हमारी ज़रूरत है। तो न्यूज़ मीडिया के भी कॉन्टेक्स्ट में हमको इससे देखना पड़ेगा कि एक तो व्हाट पीपल वांट, वो जानना चाहते हैं कि किसी फिल्म सेलिब्रिटीज़ की प्राइवेट लाइफ में क्या हो रहा है, उनको मज़ा आएगा पढ़ने में। लेकिन दूसरी तरफ यह कि उनके कुछ इन्फॉर्मेशन नीड्स भी हैं। मैं एक किसान की इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं कि उसको ये बताया जाए कि फार्मिंग में नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, सीड्स की नई टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, वो कौन से मेथड्स हैं कि वो अपने फसल की जो उत्पादकता उसको बढ़ा सके ना। दीज आर द इन्फॉर्मेशन नीड्स बिकॉज दीज आर एम्पावरिंग ए पर्सन, दे आर एक्चुअली क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट ऑन हिज लाइफ। और दूसरा कि किसान भी पढ़ना चाहता है कि मज़ेदार चीज़ें क्या हैं। एक बार एक सज्जन जो है वो, मैं किसी गांव गया हुआ था, उनके हाथ में एक अखबार था। तो मैंने उनसे पूछा कि आप इस अखबार को क्यों पढ़ते हैं। तो उन्होंने कहा कि इसमें बड़ी चटपटी खबरें होती हैं। तो उनसे मैंने पूछा कि चटपटी खबर से आपका आशय क्या है। तो उन्होंने कहा जैसे देखिए इसमें कि एक खबर है आज कि जो है वो किसी सेठ की बीबी जो है नौकर के साथ भागी। हाँ, वास्तव में सच्ची घटना है। अब एक ये खबर बड़ी चटपटी है। वो गांव के थे, मतलब किसान थे, लेकिन इसमें उनको मज़ा आ गया। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन नीड नहीं है। उनकी इन्फॉर्मेशन नीड है कि उनकी खेती में क्या चीज़ें ऐसी होती है, नई टेक्नोलॉजी, नए बीज, नए तौर तरीके क्या होते हैं जिससे कि अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ा सके। उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि उनके बच्चे कहाँ स्कूल जा सकते हैं। उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि इस वक्त बच्चों को किस किस स्ट्रीम में कैसे करियर बनाना चाहिए। ये उनकी इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं। हेल्थ के बारे में इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं। तमाम जो आपका टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, ये उनकी इन्फॉर्मेशन नीड्स हैं, क्योंकि ये एक्चुअल में उनकी जो है वो लाइफ को सीधे सीधे प्रभावित करती हैं। लेकिन मीडिया वाले तो कहते हैं कि ये हम लोग की चीज़ नहीं है, तो कैंपेन वाले कैंपेन करें, सरकारी कैंपेन के थ्रू इसको जागरूक बनाएं। अब देखिए, आज मैं इग्नू की वेबसाइट देख रहा था जिसमें कि जो हमारी तमाम टेलीकॉन्फ्रेंसिंग होती हैं जो कि आज हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, तो मैं उसमें देख रहा था किस प्रोग्राम पर कितने हिट्स आए हुए हैं। एक प्रोग्राम था जिसमें कि मतलब उन प्रोग्राम्स में जो रेंज थी हिट्स की, वो ये समझे कि 100 से लेकर के कोई 100 था, 200 था, 300 था, एवरेज रहा होगा 500 हिट्स रहे होंगे। एक प्रोग्राम था जिसमें 20,000 हिट्स थी। अब उसके बाद दूसरा प्रोग्राम था दूसरे नंबर का, जिसमें 8,000 हिट्स थी। और दोनों के दोनों प्रोग्राम हेल्थ बेस्ड थे। मैं एक था कि जब जो है प्रेगनेंसी के दौरान कुछ इसी पे था क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए। अब आप अगर कोई दावा करे कि लोग यही चाहते हैं तो ऐसा नहीं है। अगर 20,000 हिट हुई हैं जहाँ एवरेज जो है 500 का हो वेब पे, तो आप ये जान सकते हैं कि लोगों की इन्फॉर्मेशन नीड्स जो है वो अर्जेंट होती है। तो ये बड़ा आर्टिफिशियल आर्गूमेंट कि लोग अपनी नीड्स को कैटरिंग नहीं चाहते हैं ना। फैक्ट है कि कई हेल्थ शोज, करियर काउंसलिंग, ये प्रोग्राम जो है वो इनकी रेटिंग रही है। लेकिन दिक्कत क्या होती है कि एक दिन है जब कोई बहुत बड़ी घटना हुई है, जब लोग खुद ब खुद जो है समाचार देखते हैं या समाचार पत्र पढ़ते हैं। एक दिन है जब कहीं कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, तो उस दिन लोगों की न्यूज़ के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं होगी। मतलब अगर मुंबई पे आतंकवादी हमले होते हैं या अमेरिका पर आतंकवादी हमले होते हैं,
तो आप ये मान के चलिए कि कम से कम जो इनिशियल फेज ऑफ कवरेज होगा, मे बी ऑलमोस्ट 90% ऑफ द इंटायर टेलीविजन ऑडियंस आर वाचिंग न्यूज़। तब वो दिन कोई सीरियल्स नहीं देख रहे हैं, फिक्शन नहीं देखते हैं, मूवी नहीं देखते हैं। अगर इतनी बड़ी घटना होगी तो मैं सिर्फ न्यूज़ का ही नहीं, 90% ऑडियंस विल बी वाचिंग न्यूज़। लेकिन एक ऐसा दिन है कि जब कोई बड़ी घटना नहीं हुई है, तो उस दिन बहुत लोग न्यूज़ नहीं देखेंगे, फिर वो मूवीज़ देखेंगे, म्यूजिक चैनल देखेंगे या सॉप ओपेरा देखेंगे। मैं क्राइसिस क्यों होता है कि ऐसे दिन जब कोई बड़ी घटना नहीं है, उस दिन भी न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस, खासतौर से न्यूज़ चैनल्स चाहते हैं कि लोग हमको देखें, और तब ये तमाम तरह की जो विकृतियाँ, डिस्टॉर्शन पैदा हो रहे हैं। देख रहे हैं अपने, क्योंकि यू आर ट्राइंग टू सेल ए प्रोडक्ट which is on not a particular day when there is no market for that product. This is not in demand at all. लोग नहीं उस न्यूज़ देखना चाहते हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है कि आप एक चीज़ को तब बेचना चाहते हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, तो फिर आपको मार्केटिंग करनी पड़ेगी, आपको एग्रेसिव होना पड़ेगा, आपको परसुएशन करना पड़ेगा। मैं जैसे कि कई प्रोडक्ट होते हैं, उनकी डिमांड क्रिएट हम कैसे करते हैं? इंटेंस एडवर्टाइजिंग से। इसकी डिमांड हम क्रिएट करते हैं क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। आपके मार्केट में 25 वैरायटी की चॉकलेट है, अगर आप 26वीं वैरायटी आएगी तो मार्केट डिमांड क्रिएट कैसे करेगी? वो नए स्लोगन के साथ आएगी, वो कोई नई चीज़ लेकर के आएगी, है ना। वो ये कहेगी कि जो है वो मतलब अब तक तो जो माँ होती हैं वो चॉकलेट खाने से मना करती हैं, लेकिन वो एक नया स्लोगन लेके आएगी, अब माँ भी कहती है कि इस चॉकलेट को आप खाओ। तो कहीं ना कहीं जब आप एक नया प्रोडक्ट लाते हैं जिसकी कि नेचुरल डिमांड नहीं है, तो आप डिमांड क्रिएट करने की कोशिश करती हैं। और यही चीज़ लागू इस पर भी होती है जो कि न्यूज़ का मार्केट है, कि आप एक ऐसे दिन न्यूज़ को बेचना चाहते हैं जिस दिन उसका बाजार नहीं है, और उसके लिए फिर आपको एक एग्रेशन करना पड़ता है, आपको सेंसेशनलिज्म करना पड़ता है, आपको ऐसी घटनाओं का चयन करना पड़ता है जो बाय वर्च्यू ऑफ देयर नेचर विच आर सेंसेशनल, एंड देन यू टेंड टू गो फॉर द क्राइम एंड सेक्स। तो क्राइम एंड सेक्स ऐसी चीज़ें हैं कि अपने आप में सेंसेशनल होती हैं। डॉक्टर साहब, आपने बताया कि कंटेंट एनालिसिस करने वालों को एक तो टेक्स्ट पर ध्यान देना चाहिए, साथ में उसका कंटेक्स्ट क्या है, मीडिया का कल्चर क्या है, क्या उस सामाजिक और किस कल्चरल पृष्ठभूमि में वो इवेंट है उसको तैयार किया जा रहा है, और क्या लोग चाहते हैं, इस पर ध्यान देना चाहिए। अब आते हैं, एक हम लोग इससे ये समझ पाएँ कि कंटेंट एनालिसिस आखिर है क्या, इस चीज़ों को समझने में काफ़ी लाभदायक साबित। अब आते हैं हम लोग मेथड्स पे। अगर कोई न्यूज़पेपर को लेता है, कोई पार्टिकुलर इवेंट को देखना चाहता है, तो इन बिंदुओं को देखेगा, उसको पढ़ेगा। अब उसको मेथड कैसे, मेथड में उसको तो डालें? देखिए ऐसा है कि मतलब जो समय की सीमा है, जो कंटेंट एनालिसिस का बड़ा बेसिक जो मतलब डिज़ाइन एनालिसिस का, तो बाना आप पे जानना चाहते हैं कि एक अखबार में एजुकेशनल कवरेज कितना होता है। तो सबसे पहले हर रिसर्च में आपको एक सैंपल चाहिए होता है। तो कंटेंट एनालिसिस का जो सैंपल, एक जो सबसे बुनियादी जो कंटेंट एनालिसिस की रिसर्च है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, उसका सैंपल होता है कि आप एक लेते हैं जिसको हम कहते हैं कंटिन्यूस वीक। आपने लिया मंडे से लेके संडे तक का वीक, मतलब आज कल परसों का जो कंटिन्यूस वीक कहते हैं। और दूसरा होता है उसको कहते हैं कंस्ट्रक्टेड वीक, जिसका हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। उसका मतलब हुआ कि इस वीक का मंडे, नेक्स्ट वीक का ट्यूसडे, उसके बाद वीक का वेडनेसडे, और हम एक वीक को कंस्ट्रक्ट करते हैं। तो ये एक सैंपल बेस कंटेंट एनालिसिस का जो बेसिक डिज़ाइन है उसका सैंपल बेस से होता है कि एक कंटिन्यूस वीक है, एक कंस्ट्रक्टेड वीक है। तो इस तरह से आपके पास मतलब एक तरह से आप कह सकते हैं एक अखबार के 14 हो गए, एक हफ्ते के साथ, एक कंस्ट्रक्टेड वीक के 7 हो गए। तो अब एक अखबार को अगर आपने लिया, आप जानना चाहते हैं कि एजुकेशनल कवरेज कितना है, तो फिर पहले हम उसमें करते हैं जिसको हम कहते हैं क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ये सिंपल मेथड में कि एक अखबार को आप इंच टेप लेके नापते हैं कि इस अखबार का टोटल स्पेस कितना है। फिर आप ये देखते हैं कि इसमें एडवर्टाइजमेंट स्पेस कितना है, न्यूज स्पेस कितना है। फिर आप ये नापते हैं कि इसमें एजुकेशनल न्यूज़ कितनी छपी। फिर आप ये नापते हैं कि एजुकेशनल न्यूज़ कैलकुलेट करते हैं कि कितना परसेंट हो रही, टोटल स्पेस का कितना परसेंट रही, या टोटल फिर जो एडिटोरियल स्पेस था उसका कितना परसेंट रही। और फिर आप आते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस पे कि जो न्यूज़ एजुकेशन के बारे में थी वो क्या स्टोरीज थी। पहले आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ को एजुकेशनल न्यूज़ मान रहे हैं। क्या आप दिल्ली यूनिवर्सिटी की हर घटना को मानते हैं कि एजुकेशनल कवरेज है? तो आप हो सकता है ये पाएँ कि दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यूज़ में हमेशा उस चीज़ के रही जिसकी दिल्ली यूनिवर्सिटी बनी नहीं है। तो वहाँ कोई वायलेंस हुई, कोई स्टूडेंट आंदोलन हुआ, ईप टीजिंग हुई, पर यही रिपोर्ट हो रहा है। वहाँ आप कोई ऐसे रिपोर्ट नहीं पढ़ेंगे कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में कोई ऐसी PhD हुई कि कोई नया नॉलेज क्रिएट किया, सेमिनार हुआ, कोई सेमिनार हुआ, उस पर कोई रिपोर्ट आए।
तो यह है कि आप पहले तो डिफाइन करेंगे कि आप एजुकेशनल न्यूज़ किसको मान रहे हैं, और फिर आप उसका क्वालिटी एनालिसिस करेंगे कि क्या इश्यूज़ जो हमने बात की थी कि क्या इश्यूज़ उठाए गए, अब वो प्रमुख इश्यूज़ कौन से जिसको मीडिया ने हाईलाइट किया, और दूसरा कि उस इश्यूज़ में किन एंगल्स को हाईलाइट किया और किस टारगेट ऑडियंस को उसने टारगेट किया। कि अगर आप एक खास तरह से एक पत्रकार जब खबर को लिखता है तो उसके दिमाग में हमेशा एक ऑडियंस का एक मेंबर होता है कि वो खबर किस लिए लिख रहा है, खबर के चयन से लेकर के उसकी राइटिंग स्टाइल से लेकर के उसकी भाषा को लेकर के वो ही इज़ कम्युनिकेटिंग दैट न्यूज़ टू समवन, सो ही इज़ ऑलवेज राइटिंग फॉर एन इंडिविजुअल टू कम्युनिकेट दैट स्टोरी। तो ये हमेशा उसके दिमाग में रहेगा। तो फिर आप वो भी एनालाइज करते हैं कि जो खबरें ये सेलेक्ट की गई तो ये क्या सोच के की गई कि इनका टारगेट ऑडियंस कौन होगा। तो इस तरह से आप एजुकेशनल कवरेज करते हैं कि कितना एक अखबार ने आप कहेंगे कि सिर्फ जो है 3% ही स्पेस जो है एजुकेशन को दिया, 3% स्पेस पे भी आप कह सकते हैं कि उसमें 75% नेगेटिव स्टोरीज थी, उसमें 25% ही पॉजिटिव स्टोरीज थी। आप ये कहते हैं 25% जो स्टोरीज थी वही से बयान थे मंत्रियों के या लोगों के, उसमें रियल टर्म में कोई ऐसी स्टोरी नहीं थी कि जो कि रिपोर्टर। तो ये एनालिसिस आप कंटेंट एनालिसिस का बेसिक डिज़ाइन जो है वो यही है कि आप किसी भी इशू को पिकअप करते हैं तो आप ये देखते हैं कि किस तरह से उसको मैं एक किसी वीक का बनाने का प्रोपोर्शन ऑफ न्यूज एडवर्टाइजमेंट। तो इसमें एक प्रिकॉशन ये बरतना होता है कि जैसे कि आप किसी भी विषय के कवरेज का एनालिसिस कर रहे हैं तो ये जो 2 वीक हमने जो बात की थी इनको नॉर्मल वीक होना चाहिए। इसलिए कि अगर एक विषय पर हम कोई माना हम ये एनालाइज कर रहे हैं कि इंडियन न्यूज़पेपर फॉरेन कवरेज क्या है, तो आप अगर एक ऐसे वीक को सेलेक्ट कर देंगे जब कोई बहुत बड़ी घटना इंटरनेशनल इवेंट हुआ है तो जाहिर है कि उस दौरान जो मीडिया का कवरेज है वो ज़्यादा होगा। तो आपको एक नॉर्मल वीक को सेलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो डिस्टॉर्शन आ जाएगा। मतलब एजुकेशनल न्यूज़ में एक खास ऐसा पॉइंट हो सकता है एजुकेशन खबरें सबसे ज़्यादा रहती हूँ, हमारा एडमिशन्स हो रहे हैं या एक एकेडमिक सेशन खत्म होकर नया एकेडमिक सेशन शुरू हो रहा है, उस पीरियड में हो सकता है कि एजुकेशन खबरें बहुत ज़्यादा। तो जब एक आप पर एसेस करते हैं कि ये वीक अनयूजुअल वीक है, अगर हम इस सैंपल को लेंगे तो हमारे रिजल्ट्स जो है वो मिसलीडिंग हो सकते हैं क्योंकि तक कवरेज नॉर्मल कोर्स में एजुकेशन को नहीं मिलता है। तो एक ये उसमें एहतियात बरतना होता है, अनयूजुअल को हटा। हाँ, मतलब एक नॉर्मल वीक होना चाहिए। जो आप सैंपल चूज कर रहे हैं कंटेंट एनालिसिस के लिए उस वीक को नॉर्मल वीक होना चाहिए। तो ये कोई भी कंटेंट एनालिसिस चाहे एजुकेशन का हो, चाहे नक्सल इवेंट का हो या टेररिस्ट कवरेज कितना क्या प्रस्तुत है, सब चीज़ के लिए सेम लागू होता है। मतलब एक चीज़ तो ये बेसिक डिज़ाइन है, मतलब ये समझे कि ABCD है, लेकिन उसके बाद फिर आपके सैंपल बेस कई तरह के हो सकते हैं। मतलब मुमकिन है कि आप एक अखबार का ही 1 साल का कवरेज एनालाइज करना चाहें, मुमकिन है कि आप कंपेटिटिव एनालिसिस करना चाहें। तो डिपेंड करता है फिर कि आप रिसर्च क्या करना चाहते हैं, क्योंकि उसी हिसाब से आप एक रिसर्च का एक खाका तैयार करेंगे और उसी हिसाब से अपनी मेथोडोलॉजी को इवॉल्व करेंगे। तो कई बार लोग एकदम कंटेंट एनालिसिस करते हैं कि एक टाइम फ्रेम को लेकर के करते हैं, लेकिन माना आप ये रिसर्च करना चाहते हैं कि हाउ रिलीजन इज बिंग रिपोर्टेड, तो हाउ रिलीजन बिंग रिपोर्टेड में आप एक लंबा स्पैन ऑफ टाइम ले सकते हैं कि आप एक कई तरह की वैरायटी जब स्टोरीज का सिलेक्शन कर सकते हैं कि किस तरह से न्यूज़ फ्रेमिंग में मतलब रिलीजन में किस तरह के बायस थे। जैसे आजकल बड़ी डिबेट चल रही है कि इस्लाम का जो मीडिया प्रोजेक्शन है दैट इज़ फार अवे फ्रॉम द रियलिटी। नाउ दिस इज बीइंग एक्सप्रेस्ड इन द एंटायर इस्लामिक वर्ल्ड दैट इस्लाम इज नॉट बीइंग प्रोजेक्टेड इन राइट पर्सपेक्टिव। Now, Islam, they are saying that Islam is not that kind of a negative religion, the way it is being projected, as if it's a fundamental religion, it's regressive, it's enslaving women. उनका मानना ये है। तो इस पे बड़ी स्कॉलर डिबेट होती है। मैं एडवर्ड सईद की एक पूरी किताब है जिसमें उन्होंने कहा कि रिपोर्टिंग इस्लाम, इन इश्यूज़ पे उन्होंने तमाम जो है रिसर्च की है। तो अब जो उनकी किताब में जो रिसर्च है वो रिसर्च फिर ये 2 हफ्ते के कंटेंट एनालिसिस पे बेस्ड नहीं है। वो रिसर्च उनकी है कि जो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम मीडिया ने कैसे कवर कर रहा है उसको एनालाइज करने की कोशिश की है। तो ये डिपेंड करता है कि हमने अपने क्या व्हाट ऑब्जेक्टिव्स वी हैव सेट फॉर आवरसेल्फ, व्हाट आर आवर हाइपोथेसिस, एंड अकॉर्डिंगली वी विल चूज आवर रिसर्च डिजाइन, अकॉर्डिंगली वी विल इवॉल्व आवर मेथोडोलॉजी। तो ये बहुत जरूरी। एक तो अनयूजुअलनेस, दूसरा और क्या एस्पेक्ट है जो हम लोग उस पर रिसर्च एस्पेक्ट ऑफ सम अप अगर करें तो एस्पेक्ट्स मतलब यही है कि पहले तो आपको मतलब न्यूज़ की सोशोलॉजी को, न्यूज़ की पॉलिटिक्स को समझना चाहिए। मतलब जो मैंने कहा कि एक इमेज फॉर्म होती हैं, परसेप्शन फॉर्म होती हैं,
कुछ न्यूज़ वैल्यूज़ हैं जिसके बेसिस पे न्यूज़ डिसीजंस होते हैं। तो इस पूरे डायनेमिक्स को समझना ज़रूरी है कि ये क्या फ्रेमवर्क है जिसकी बेसिस पे एक घटना समाचार बनती है, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरा है कि उस घटना के किस आयाम को ज़्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। जैसे मैंने उदाहरण दिए आपको, इराक के उदाहरण दिए, इसराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के उदाहरण दिए, अफगानिस्तान के जो है एग्जाम्पल दिए, कि कई बार लगता है कि एक वॉर का जो कवरेज है उसमें भी एक एंटरटेनमेंट है। कि आपने बॉम्बर्स को उड़ते हुए दिखा दिया, आपने टैंक्स की फॉर्मेशन को धूल उड़ाते हुए चलते हुए दिखा दिया, आपने बॉम्बिंग ऑपरेशन दिखा दिए, और आपने ह्यूमन मिजरीज को इग्नोर किया। तो आपने एक जो रिप्रेजेंटेशन किया उसमें किया कि जैसे कि वॉर कोई फैसिनेटिंग चीज़ है। नो, एज ए फैसिनेशन यू हैव रिप्रेजेंट द वॉर एज एंटरटेनमेंट, बिकॉज यू हैव टोटली इग्नोर्ड द ह्यूमन मिजरीज, because that every war has great amount of human miseries, the sufferings of the common people. Now, which dimension you are? I think that's extremely important. That what we select and what we have selected, which dimensions we are highlighting. Means image and truth या propaganda agenda Media representation of the reality. That's the crux of any research. that need to be That needs to be investigated. And that to be understood and analyzed thoroughly. so एक तो पहले ये भी पता करना होगा रिसर्चर को कि क्या करना चाहता है, उसके अनुसार वो अपने रिसर्च First is, मतलब he or she has to set his or her objectives, and then everything will follow. तो अगर इन केस रिसर्चर मान अनोइंगली अनयूजुअल चीज अनयूजुअल इवेंट जो है उसी को सिलेक्ट कर लेता है अनोइंगली, तो हाउ ही विल करेक्ट हिज रिसर्च इन द फाइनल स्टेजेस? That means अगर वो कोई वीक का सिलेक्शन में गड़बड़ हो जाती है, then the results will Is be there any kind of remedy remedy means available? then just go for another counter analysis, pick up a normal week, normal day. Okay. लेकिन ऐसा नहीं है, मतलब अगर आपने न्यूजुअल डे को जो है पिकअप किया तो आप उस पर भी रिसर्च कर सकते हैं. यू आर नॉट डूइंग क्वांटिटेटिव रिसर्च, यू कैन डू क्वालिटेटिव रिसर्च, द इंटरप्रिटेशन दैट व्हाट हैज बीन रिपोर्टेड, हाउ इट हैज बीन रिपोर्टेड. लेकिन अगर आप एक कंटेंट नॉर्मल कंटेंट रिसर्च कर रहे हैं जिसमें क्वांटिटेटिव भी है, तो तब आपको नॉर्मल वीक लेना चाहिए. लेकिन आप एक अनयूजुअल वीक लेकर के तब रिसर्च कर सकते हैं कैसे उसको रिपोर्ट किया गया. मतलब माना आप एग्जैक्टली ये देखना चाहते हैं कि अफगान वार को कैसे रिपोर्ट किया जा रहा है, तो आप अफगान वार में उस पीरियड को ले सकते हैं जब वहाँ सबसे ज़्यादा कवरेज मिला हो, क्योंकि तब ज़्यादा पता लगेगा कि स्टोरीज कैसे फ्रेम की गई. तो डिपेंड करता है कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है. एक चीज़ और आजकल जो देखा जाता है पॉलिटिकल्स कवरेज में या पॉलिटिकल्स एक्टिविटीज़ में, तो पॉलिटिशियंस ऑर्गेनाइज द इवेंट द वे इट माइट बी रिपोर्टेड more. So how can a researcher do a study on this kind of activities? Because the activities are organized to be reported only. But you see, because politicians first ensure that whether it will be reported or not. The major chunk of political discourse is being conducted through media. Right. And in fact, it is said that we are living in an age of mediacracy and not democracy. Okay. Because it's media which is controlling the democracy. Now, for every politician and every political party, it has become extremely important they get enough space in the media. Right. Now, important because now media has become huge. Now media is reaching almost every home of this country. Radio coverage 100%, even television coverage is now, I think it's over 75%. So even the poor people, even the villages, there is a great amount of exposure of television. Now, this size of industry was not in existence during 60s and 70s. Then during 60s and 70s, the public meetings used to be major tools of the campaigns. Now it's not only important to hold a public meeting, but it is also important that how much coverage this meeting will get. Right. You project something. You project that Muslim voters are inclined towards this particular political party. Then one is that they may be inclined, but on the other hand, you are also encouraging those section of the minority segment who are not inclined to get inclined. So there is an impact. कि आपने कहा कि इस बार माइनॉरिटी इस पार्टी को वोट करेगी,
आपने जब ये कहा तो माइनॉरिटी के जो लोगों ने ये भी तय नहीं किया था कि वोट इसको करेंगे, हो सकता है कि उनका एटीट्यूड बदल जाए तब उससे वोट करें। तो मीडिया इन ए वे, कई बार मीडिया इज ए ड्राइविंग फोर्स ऑल्सो, बिकॉज व्हाट काइंड ऑफ एजेंडा यू आर सेटिंग। कि आपने कहा कि ये पर्टिकुलर पॉलिटिकल लीडर यूथ लीडर है, तो आपने जब यूथ लीडर की इमेज उनकी क्रिएट करी तो उनकी यूथ फॉलोइंग भी हो जाएगी। एक सिचुएशन तो ये कि आप यूथ फॉलोइंग है तो आप यूथ लीडर कहा जाता है। एक से कि जब मीडिया कहता है कि आप यूथ लीडर हैं तो आप यूथ फॉलोइंग क्रिएट भी हो सकते। तो ये इट्स अ टू वे प्रोसेस। At times there is a reality that, but media can magnify that reality. At times media is creating some agenda. Now, if you take political campaigning, I do remember that during 70s and 80s, this door-to-door campaigning was very important tool of election campaigning. In Delhi also, the agents of different political parties and different candidates, they used to come to their home, knock your door, then give you some pamphlet, some publicity material. Now that form of campaigning has totally disappeared now. In Delhi, during election period, we don't get any agent of any political party visiting our home and knocking the door and giving us some pamphlet. Now the entire discourse is through media only, because media has become now very, very, very dominant as a platform of public discourse. But again, we cannot ignore the fact that there are situations when media predicted certain political trends in relation to the elections, and outcome are totally different. Now people, they have their own experience, so media is not a decisive factor. Media creates an impact, but its impact is not decisive. At times there is some kind of a different kind of upsurge and media may become not that effective. It all depends that, now for example, there are some political leader, they have a very strong base among certain caste. So whatever is the media campaign, it will be difficult to shake them from that social base. Now there are situations when a volatile situation, media can play important role, but it is not that media can do anything. Media creates an impact, but it is not that the people thinking their aspirations may not match with what media is projecting. In last elections also, last elections also, the way one particular campaign, India Shining, was projected by the media, but the reality was totally different. So media was in a way detached from the reality. Media failed to evaluate the undercurrents, the opinion in a right perspective. So that happens at times. But definitely in today's context, the major chunk of democratic discourse is being conducted through media only. So what do you think in coming years, what direction will it take? How will media definitely is becoming very, very dominant and very, very powerful, but now new technology is creating numerous options. Now for example, now you have internet, you have blogs, you have now concept of citizen journalist. Now despite the fact that the penetration of internet of our country may be very, very limited, but again that penetration is among that segment of the population which is most active, and if you can influence the active segment of the population, that means you are creating great amount of impact. आप ये नहीं कहते हैं कि ये मीडिया सिर्फ 5% लोगों को पहुंच रहा है तो ये मीडिया का असर नहीं है। हो सकता है 5% मीडिया लोग जो हैं वो समाज में असरदार हो, वो 5% जो है वो 50% को इन्फ्लुएंस कर सकते हो। अब ये नई टेक्नोलॉजी जो आ रही है, तो अब डेफिनेटली जो है वो इंफॉर्मेशन के जो सोर्सेज जो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जो अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो अवेलेबल है, अब लोगों के लिए ये जानना बहुत मुश्किल नहीं है कि सच्चाई क्या है। अब आप मीडिया के तमाम जो भी एनालिसिस हैं, कवरेज है, इंटरनेट पे सब अवेलेबल है, इंटरनेट पे सारी खबरें अवेलेबल है। तो ये नई टेक्नोलॉजी ऑप्शंस जो डेवलप कर रही है कि आप एक अखबार भी पढ़ सकते हैं, आप एक टेलीविज़न चैनल भी देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे भी खबरें देख सकते हैं, और आप अपना जो है आपके पास ज़्यादा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो आप सिर्फ एक चैनल पे डिपेंडेंट नहीं है कि जो इन्फॉर्मेशन आपको देगा वही परसेप्शन आप फॉलो करेंगे, आप फॉर्म करेंगे। नाउ दिस इज़ नाउ द नेक्स्ट फेज इज़ व्हेन people will have numerous options to access the information, and that will make a great difference. यह भी माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक वर्ल्ड न्यू इंफॉर्मेशन ऑर्डर क्रिएट होगा, इसके बारे में आपकी क्या राय है? और इसके साथ हम लोग समापन
के कार्यक्रम में करेंगे, इस पर थोड़ा सा इसके दो आयाम हैं। एक तो द फर्स्ट इज द डोमिनेंट ग्लोबल मीडिया विच इज प्राइमरली द वेस्टर्न मीडिया. It controls the major chunk of global news and information flow. So first is the dominance of the developed world. But again, as I said, that there are now options, there are now technologies offering options for expression of dissent. आपका मेन स्ट्रीम मीडिया, if it's not reporting some dissent, you have so many other options to express your dissent. And if your dissent has substance, it will create an impact. Now that will happen globally also. And new global order may be of multi-layer. There is one global media, there is one national level, there is regional level, and then there is local level now. Now the great amount of localization of news is also taking place in every country, in our country also. Local news are becoming more important. Right. So this is a situation when on the one hand we have the globalization and on the other hand we have the localization. So if this combination of localization and globalization, what shape it will take will be something that we can watch very very keenly. Okay. तो मित्रों, आज आप लोगों ने डॉक्टर सुभाष धुलिया के व्याख्यान को सुना। काफ़ी अच्छी तरह से उदाहरण के साथ इन्होंने कंटेंट एनालिसिस को हम लोगों को समझाने की कोशिश की। मैं समझता हूँ आप सबके लिए लाभदायक साबित होगा। आप कंटेंट एनालिसिस के विभिन्न पहलुओं को समझ पाए होंगे और किस तरह से प्रैक्टिकल स्तर पे उसे उतारा जाए, यह भी आज हम लोग को सीखने का मौका मिला। सो मैं समझता हूँ कि आज का लेक्चर आप सब लोग के लिए लाभदायक साबित होगा और आपकी ओर से डॉक्टर सुभाष धुलिया को धन्यवाद और आप लोगों को भी इस कार्यक्रम को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।